We have our beloved Dada, the one and only, the legend, Saurav Ganguly. This is the first time I'm in a cooking show. आज बहुत मजा आने वाला है, हम खाना पकाएंगे और साथ में पकाएंगे, खाली मैं नहीं पकाने वाला हूँ. चलो आज खाना बनाना भी थोड़ा बहुत सीख जाऊंगा. We'll add a little. This is inexperience. See? Bengali food is भात, दाल, पोस्तो. 300 के लिए थोड़ा पे यहाँ पे टायर चाहिए. अभी आप हार्दिक को देखोगे, विराट को देखोगे, 1, 2, 3, 4 पैक से तो टाइम बदल गया. The best ever celebration is going to be the celebration what you did when we won at Lord's. अरे वाह. So we're doing a soya badi in peri peri sauce and we're going to plate it in 3 ways. मैं ये समझता हूँ कि वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत स्वाद और पुष्टिकारक ऑप्शन है. क्या लगता है 2025 में कौन सी IPL टीम है सबसे? ये बोलना मुश्किल है, लेकिन अच्छे टीम्स है सनराइजर्स, दिल्ली कैपिटल्स. अब MS धोनी को कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते, जितना भी उम्र हो जाए. 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था. फाइनल के बाद एक दिन बाद सबको बताया गया था कि फाइनल फिर से होने वाला है. उसका रीजन ये है कि रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग था. तब तक हम कलकत्ता आ चुके थे, किड बैग अनपैक करके अपने बिस्तर पे सो रहे थे. एक चीज़ इंडिया के बाहर यूरोप में बहुत अच्छा लगता था, बटर चिकन, स्वीट बटर चिकन. उसमें स्वाद बहुत अच्छा था. I have forgotten to switch on the gas. Because I've been only talking to you about the unun, so you don't need the gas. ऐसे प्रेस करना है. You just grab this like this. You're doing it perfectly, sir. हो गया भाई. Thank you. Thank you. हमारा जो एक कोई लकी व्यूअर होगा वो आपका एक साइंड बैट मैं उनको भेजूँ. और ये आपको कैसे मिलेगा ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ. बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर YFL व्यूअर. मैं सिर्फ उसका ओपनिंग पार्टनर नहीं था, उसकी बदमाशी के पार्टनर, उसके शौक के पार्टनर. तो उन्होंने शेफ को बोला कि अच्छा से क्रोकोडाइल मीट बनाओ और टेबल में जब देना उसको चिकन बोलना. तो आपका रिएक्शन क्या था? कुछ बोला नहीं. अब कुछ बोलेंगे तो टीम से निकाल देंगे. तो What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL. आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है. एक बचपन का सपना मेरा आज पूरा हो रहा है. We have our beloved Dada in the YFL kitchen, the one and only, the legend, Saurav Ganguly. Thank you, Sanjay. आप YFL kitchen में आए हो. It's a big day for me. No, thank you. It's my pleasure. This beautiful environment and a lovely kitchen. I know you live here. I've heard about you and how you've made cooking a thing for people's dining room, not just the kitchen, but the dining room as well. So this is nice. First time I'm in a cooking show. Wow. So hopefully we'll have some fun. Thank you so much. और आज बहुत मज़ा आने वाला है. हम खाना पकाएंगे और साथ में पकाएंगे, खाली मैं नहीं पकाने वाला हूँ. We'll cook it together and we are cooking one of my favorite recipes जो usually मैं घर पर cook करता हूँ. And it's going to be interesting. I'm not going to tell it to you now. As in when we cook, we'll get to know what we are cooking. पहले मैं यहाँ पर vegetables cut करने वाला हूँ. आप वहाँ पर पानी उबालने रखेंगे in this कढ़ाई over here. Just fill it up and गर्म पानी है इसमें. हाँ, गर्म पानी है इसमें. So that we don't waste time and Yes, nice. start. चलो आज खाना बनाना भी थोड़ा बहुत सीख जाऊंगा. हाँ. पर वैसे आप खाना कभी पकाते हो और it's not your thing? It's not my thing, but कभी कभी जब वाइफ और बेटी कुछ बनाती है तो बाजू में बैठ के कुछ हेल्प कर देता हूँ. अच्छा. But तो आप अपना वो एक एक्स्ट्रा तड़का उसमें ऐड कर देते हाँ, हो. थोड़ा सा मीट, थोड़ा सा चक पी लेता हूँ. We'll add a little Some more? a little more. This is inexperience. See? No, but इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ. बिल्कुल. आप जब बचपन में घर पर थे, so who was the one who was cooking? Mother. Mother? No, you know, I grew up in a joint family, so my fathers were 7 brothers. Oh wow. They were all together. Their children were all together, and cooking was done at one place. So we used to have, as they call in Bengali, Thakur. हाँ. Thakur, and they used to come from Odisha. The best cooks come from Odisha, and they used to cook. But you know, and there used to be none of these modern stuff. Yes. And it used to be a big unun, as they call it. Unun. Unun. It's of mud, हाँ. clay, and they put the fire inside. Oh. Okay. And the flame comes up and they cook on it. So in the morning they used to wake up at 5 o'clock and get the burner going, Wow. and then they cook, and we used to eat at the same place Together. So we had a big table in the dining area. Plates used to go and the foods used to be served. Rice one after the other, dal one after the other, chicken one after the other, vegetables one after the other, and you eat and somebody's going to school, somebody's going to Oh play. wow. So that's how we've grown up. And what is the kind of food? क्या किस्म का खाना तभी बनता था? Bengali food is bhat, dal, posto. Fish is a very important part of our Yes. diet. Which is your favorite fish? I like hilsa. Prawns used to be very favorite. Crabs used to be very favorite. So because Calcutta is closer to the river, Yes. so we used to get prawns and crabs, and chingri machir malai curry used to be. Yeah, that's one of the most popular Bengali dishes. And I'm in such an awe, you know, while cooking with you that I have forgotten to switch on the gas for the water.
Because I've been only talking to you about that unun. So you don't need the gas. Unun is made of matti, so food keeps you mentally happy. Yeah. If you are in a stage in life where there's no restrictions on anything you eat, it's the happiest time of life. Yeah. Because a good food makes you feel good. That's absolutely right. And our like water is like warm enough to add the soya. So we're doing a recipe with soya buddy today. I love it. I love soya buddy actually. Yeah. And my obvious choice always is Fortune soya buddy. I'm going to add it in. One reason, obviously, your stamp of approval is there for Fortune soya buddy. A very good source of protein for, especially for vegetarians, because हमेशा vegetarian जो होते हैं सोचते रहते हैं यार हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा. तो ऐसे मिलेगा. मैं ये समझता हूँ कि वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत स्वाद और पुष्टिकारक ऑप्शन है. Absolutely. And majorly in India, we are a protein deficient country. हम actual जितने percentage of protein खाना चाहिए अपने diet में वो नहीं खाते हैं. So this is one of those ingredients which is very easy to cook. It's a very good alternative to paneer. With dal, what happens is अगर दाल से प्रोटीन चाहिए तो दाल की क्वांटिटी बहुत खानी पड़ेगी because the percentage of protein is way less. सोया बड़ी में 52% प्रोटीन है. So a very higher percentage of protein is there, 15x of milk. It is. So without, And tasty. yeah, it's very tasty. You know, in our family, they put soya chunks, Yeah. cooked soya chunks in yellow rice. Yes. And it's Incredible. tasty. It's very, very tasty. Yeah. We just need to boil this for a couple of minutes. आज जब भी हम क्रिकेटर्स को देखते हैं खेलते हुए एंड यू नो व्हेन द मीडिया टॉक्स अ लॉट अबाउट यू नो दिस प्लेयर हैज दिस पर्टिकुलर डाइट यो टेस्ट में इतने मार्क्स मिले हैं एंड a lot of talk is there in the media about the fitness of the players and the diet of the players they're following, etc. Back then, इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी. Times were different when we played. You know, we never had any diet. I've been a teetotaler all my life. I've never drunk. I've never smoked. None of my family members have. So I've played with players like Rahul and Yeah. Anil who would never do the same. From the alcohol point of side, there was obviously there's no question, but we ate everything. We ate everything because, as I said, we used to train so hard, practice, travel, play all the time. So you were naturally fit. But things have changed a lot. You see someone like Virat now talking about, I don't eat this, I'm Yeah. vegan, I don't eat meat, I don't eat milk. But that was not the case when we were playing. So times have changed. I don't think Rohit Sharma follows any diet. So No, but he's like they have like great stamina on the field. yeah, and stamina they comes perform. with training. Yeah. Stamina comes. They do the yo-yo test. Yes. You know, many of them are 17.2 on the yo-yo test. Was something like that there? Yeah, while we you were had playing? 16.1. We had 16.1 on the yo-yo. It was a different yo-yo. And But what happens in a yo-yo test? But keep running. So you keep the 22 yards, you keep 2 cones, and you keep running. So during our time, the yo-yo test was you have to run for a minute, and you have to do certain number of. So you keep going back, coming up and down for a minute. It starts slowly. It starts with 7 in a minute, then it goes to 8, 9 in a 9, 10 and 12, and then you have to keep doing it till the beep goes to 16.1. okay, So every time you finish, it's 1. So you have to do it 16 times. 16 times. So when you do 7, it's 1. Next beep for a minute, it's 8. That's 2. Oh, okay. So doing that, you have to do 16 sets to get to 16.1. And I don't think Sunil Gavaskar did it. He was one of the best players in the world. I don't think Michael Holding or Kapil Dev knew what the yo-yo test was. They Yeah. kept running. The Kapil Dev used to drink milk and keep running, doing laps of Brabourne Stadium or Eden Gardens. So I don't see any hard and fast rule. Yeah, we used to see Sehwag play at that time. और उन्होंने जो knocks किए हैं 300 के, it used to बिल्कुल। look like, you know, for us, it was a delight to watch. हाँ। और ऐसे लगता था यार, बस गार्डन में चलते चलते बना लिया, तो but it उसका takes माँ so much of बोलती थी कि effort. तू ज्यादा पतला हो जाएगा तो 300 नहीं बना पाएगा. 300 के लिए थोड़ा पे यहाँ पे टायर चाहिए. और अभी टायर नहीं है, अभी 6 पैक है. अभी आप हार्दिक को देखोगे, विराट को देखोगे, रोहित शर्मा को नहीं, हार्दिक, विराट, आप बुमराह को देखोगे तो कपड़े उतारे तो सारे 1 2 3 4 पैक्स है. तो टाइम बदल गया है. बट उस समय कपिल देव ने 150 टेस्ट मैचेस खेला है. Yeah. तो टाइम अलग है, लोगों की सोच अलग है. But do you बदल think चुकी. 6 packs or like being that fit or visually looking that fit is important or? No, being fit is important. Whether you look visually or you don't look visually, that is immaterial. Being fit, being able to bowl 30 overs a day, being Yeah. able to bat for 6 hours a day, that's what fitness is. That's what the game demands. So you train accordingly and become fit accordingly. सोया बड़ी बॉईल हो गई है. We just need to now rinse it with, you know, fresh water और उसको ठंडा कर लेना and then we'll squeeze it. So that once you squeeze it, it again becomes porous.
और उसकी वजह से when we cook it into the masala, वो मसाला फिर से it'll absorb. You know, the best thing about this show is I'm learning all this. I'm going to England on 26 for 4 days Wow, and I'm going to cook the soya body. perfect. So it's warm water, you put soya body. Yes, and Okay. then once you've like boiled it for like a couple of minutes, Yeah. you just rinse it with cold water. And this is cold water. Yeah, जब Normal. ठंडा होगा तो थोड़ी जल्दी से सोया बड़ी ठंडी हो जाएगी and you'll be able to squeeze it with your hands. Okay. One thing which I remember and जो मेरी एक याद है, it's very nostalgic for me, was 2002, the NatWest finals. So we won the final, that is one memory, but the other memory is, as 90s kids, the best ever celebration is going to be the celebration what you did when we won at Lord's. That instantly became like an inspiration for so many of us kids कि हम लोग वही celebration करते थे फिर. I was very fortunate enough to actually see India win the World Cup at Wankhede. Last moment ticket मिल गई थी और देखने गए थे और जैसे ही जीते हम, the first instance was to t-shirt निकाल के घुमाना है. And Yeah, you know, I was actually down that day. I was commentating. So I told the commentators कि यार last वाला छोड़ देना मुझे, because I want to go and see what it is, because I've captained India in 3 World Cup finals. And in 2003 South Africa, we lost to Australia in the final, and I know what it is to lose a final. So when India won it in 2011, I actually came down yeah, to see what it feels to be in the ground of a winning team. And it was a fabulous atmosphere. I've never seen Bombay like that. yeah, it was. And I finished the game and I was going back to my hotel on Marine Drive. And trust me, from Wankhede Stadium, and we were staying at the Oberoi's, I couldn't reach Yeah, it was because packed. there were just cars. But you were all celebrating. It was People were on the roof of the cars. yeah, it was crazy. celebrating And India's win. And we also saw that again when we won the World Cup, again the T20 World Cup very recently, and Mumbai was jam-packed for hours. And a very big, credit obviously goes to you, because a lot of players in these teams were nurtured while you were captaining the Indian side at that time, and you gave the Indian side this very different perspective, how we represented ourselves internationally. You gave this fierce approach, the kind of attitude the players had. It completely changed under your It's the captaincy. mindset. Yeah, We were a great side at home where the spinners dominated. We had some great spinners in that generation. Anil Kumble and Harbhajan Singh, and I was captain. And I didn't have to tell them anything. I just had to give the ball to them and they got wickets on turning pitches. But as we went overseas, as we went away, we did not manage to win because we didn't have the firepower for those conditions. And then the likes of Zahir Khan came in, Ashish Nehra came in, and we started winning test matches away from. So the mindset was to be a good team everywhere, to be respected in all conditions. Conditions should not decide how good you are. It's your talent which must control the conditions. And I think that was the mindset in those days. absolutely. All right, so this is now like warm to touch. So we'll just, Can I touch? yeah, you can. And let's see how softer it has become. Yeah, that's It's nice. very soft. We are now going to squeeze this. And what this does is, एक तो जो पानी में हमने इसको उबाला है वो निकल जाएगा, and because of which it will now again want to absorb the flavors of the masala. So when we cook it into any kind of a masala or a gravy or anything, it won't be dry. It will be moist and it will have all those spices which have gone into it. So this step is very important. So you squeeze it and remove it and keep it aside, and then you make the masala and you will add the soya badi into the masala. हमने आज थोड़ी सी ज़्यादा बात की है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है ये करने में. इट्स लाइक अ 2-3 मिनट प्रोसेस. जब आप बोल रहे हो कि हमारी बातें के लिए ये और थोड़ा सा नरम हुआ है. हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा नरम हो गया अच्छा है ना, और अच्छा बनेगा अभी. और अच्छा बनेगा. आज फिर तो अभी बाकी की कुकिंग थोड़ी सी ज़्यादा आप करना फिर. कर देंगे हम, बोल. आप डायरेक्शन देते रहिए, काम मैं करता रहूँगा. डन डील. मेरी एक स्टोरी है कुकिंग का. हाँ, सुनना चाहता हूँ. यस व्हाई नॉट. तो मैं एक दिन एक मैगजीन पढ़ रहा था. ओके. मेरी वाइफ की एक इंटरव्यू आई थी, बहुत अच्छे खाने के, ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया. तो मैं फ्लाइट में पढ़ रहा था, तो पढ़ के ना मैं हैरान हो गया, यार इतने साल से शादी हो गई है, 25-27 साल की शादी है, तो मैंने तो मेरे लिए तो कभी बनाया नहीं. तो मैं घर वापस आया तो मैंने कुक से पूछा, भाई दीदी ने कि ये सब बनाया है, अब आगे क्या बोलेगा वो मैं ऑफ स्क्रीन बताता हूँ. वो मैं ऑफ स्क्रीन बंद, क्योंकि घर जाना है वापस. तो चलो, आज जो रेसिपी बन रही है बहुत अनयूजुअल है, हटके रेसिपी बना रहे हैं इससे. वी आर गोइंग टू कुक अ पेरी पेरी सॉस. तो पेरी पेरी सॉस हॉट है, माइल्ड है कि एक्स्ट्रा हॉट है? दैट डिपेंड्स ऑन अस. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइस ऐड करेंगे. और बहुत स्वाद है उसमें. यस,
ये जो 2 चीज़ें हैं, ये सर आपने यहाँ पर रोस्ट करनी है। तो अब मुझे बताना कि कब बस तक इसको जलता रहे और कब मैं निकाल बंद कर काला हो जाए पूरा। पूरा ये बेल पेपर और टमाटो काला हाँ, हो तो जाए, इसको बस बीच-बीच में ऐसे घुमाते रहे। टर्न करते रहना है और काला कर देना है इसको। चलो ठीक है, हाँ। 4 दिन के बाद इसका फायदा आएगा। तो यहाँ पर अनियंस ये अंदर चला गया, कैश्यू नट्स डाल रहे हैं क्रीमीनेस के लिए, पुटिंग 1 चिली ओनली, ये अदरक डाल रहे हैं इसमें, कश्मीरी चिली डाल रहे हैं फॉर द कलर, सो दिस चिली इज नॉट वेरी स्पाइसी। गार्लिक इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है गर्म पानी। आप जब भी इंटरनेशनली ट्रैवल करते थे, कौन सी ऐसी कंट्री होती थी जो आप सोचते थे कि ये कंट्री में जाएंगे अभी अच्छा खाना मिलने वाला है? पर्टिकुलर ऐसी कोई कंट्रीज होती थी, कुड बी ऑस्ट्रेलिया, कुड बी मे बी पाकिस्तान आल्सो, यू हैव थॉट देयर। पाकिस्तान में खाना बहुत अच्छा है बट बहुत रिच है। पाकिस्तान में चिकन एक लेवल पे ख़त्म होता था और उसका इतना लेवल तक तेल रहता था। तो उनका ऑब्वियसली जितना तेल डालोगे तो उतना स्वाद हाँ। होगा। मैं शोएब अख्तर को देखता था कि ब्रेकफास्ट पे रोटी चिकन मटन खा के ग्राउंड में जाता था। मैंने उससे एक दिन पूछा, यार तू सुबह 7:30 बजे कैसे चिकन मटन खाता है? कहता तेज़ बॉलिंग करने के लिए चिकन मटन सुबह खाना ज़रूरी है। बट मैं इंग्लैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाके खाना एंजॉय करता हूँ। अफ्रीका में बहुत एंजॉय किए हैं बारबेक्यू। बारबेक्यू। लैम्ब चॉप्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, बर्न्ट लैम्ब चॉप्स। अच्छा। तो वो खाते थे, अब तो वो भी नहीं खाता हूँ। हर चीज़ चाइनीज़ मिल जाते थे, थाई फूड मिल जाते थे, इंडियन मिल जाते थे, बट इंडिया के बाहर जाके इंडियन कम खाते थे। हाँ, क्योंकि इंडिया के बाहर का इंडियन थोड़ा सा मीठा होता है। बराबर, थोड़ा हाँ, अलग, बहुत हाँ, अलग भी होता है। क्योंकि बांग्लादेश रेस्टोरेंट्स बहुत होते हैं हाँ। और मैं बंगाल से हूँ तो मेरा भी थोड़ा सा स्वीट टंग है। ओके। तो मुझे वो एक चीज़ इंडिया के बाहर यूरोप में बहुत अच्छा लगता था, बटर चिकन। हाँ, वो बटर चिकन का स्वाद अलग होता था, स्वीट बटर चिकन। इंडिया से बाहर हर जगह पे और सम पर्टिकुलर प्लेस? इंग्लैंड में इंग्लैंड में। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने जाते थे तो अकेले जाते थे। शादी हो चुकी थी तब, लेकिन वाइफ हर समय नहीं रह पाता था। राइट। तो मार्क्स एंड स्पेंसर्स में जाते थे, खाना पैक्ड फूड लेके आते थे और वो बटर चिकन दिखता था, उसमें स्वाद बहुत अच्छा। बटर चिकन और चावल रोटी खा के फ्रिज में डालो, गरम करो और खाओ। घर में कोई है नहीं बनाने वाले, पूरा दिन खेल के आते थे, खाते थे। सैलड्स अच्छा लगता था क्योंकि इंग्लैंड में सैलड्स अच्छे मिलते राइट। हैं। पास्ताज नूडल, बट वो सब बंद कर दिया था। सब बंद कर दिया। तो वही सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हर देश में चाइना टाउन की चाइनीज़ में स्वाद अलग है। यस, बहुत अमेजिंग होता है। और इससे एक आपने एक चीज़ बोली कि आपको कभी दिक्कत नहीं होती थी, बट ऐसा कौन सा प्लेयर था आपकी टीम में तभी, या इंडियन टीम का प्लेयर था जिसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी बाहर जाके? वेजिटेरियंस वेजिटेरियन। वेजिटेरियन श्रीनाथ जी थे हमारे, मेरे खास दोस्त। पहले तो वेजिटेरियन थे, इतनी तेज़ गेंदबाजी करते तो हमने उनको बदला ओके। कि भाई देख, बिना चिकन मटन खा के तेज़ गेंदबाजी नहीं हो सकती, तो आपको चिकन मटन खाना पड़ेगा। तो नहीं तो वो सिर्फ रसम खाता था, रसम और चावल। और उन समय ना टाइम्स अलग थे। 97 वेस्ट इंडीज़ में मुझे अभी भी याद है, जर्नलिस्ट जाते थे साउथ इंडियन से, वो रसम और चावल लेके जाते थे। तो वो अपने होटल्स में, अपने अपार्टमेंट्स में बनाते थे, तो हम शाम को आते थे खेल के। स्पेशली श्रीनाथ कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, राहुल द्रविड़, साथ में मैं भी जुड़ जाता था क्योंकि उनके दोस्त थे। रसम चावल खा लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मटन चिकन ज़रूरी होता था। हाँ। तो धीरे धीरे श्रीनाथ को भी नॉनवेज बनाए कि भाई तेज़ गेंदबाजी करनी है तो चिकन मटन खाना पड़ेगा। पर फूडी सबसे ज़्यादा कौन है? सब मतलब सारे? सब हाँ, सारे। तेंदुलकर थे बहुत फूडी। हाँ, उनके तो रेस्टोरेंट्स भी थे। हाँ, सी फूड बहुत बहुत फेवरेट था उनका। क्रैब्स, और आपने तो लॉबस्टर्स। उनके साथ इंदौर में कैंप में, आई थिंक आप जब 13 साल के थे तब वो शायद। छोटा था। हाँ, तभी भी फूडी थे? हाँ थे, तभी सब फूडी थे। और आपको कुछ याद है तभी का कोई किस्सा और तब तो आपको? 5 स्टार होटल भी नहीं होता था। अभी तो जूनियर क्रिकेट में 5 स्टार होटल है। तब डॉर्मेटरीज में रहते थे और एक जगह किचन में खाना होता था, तो दाल चावल। और दाल ऐसा होता था कि ढूंढना पड़ता था कि दाल किधर है। पानी। हाँ, तो दाल चावल चिकन बनाते थे ब्रेकफास्ट एक साथ, वो मज़ा ही अलग था। जब मैं जूनियर क्रिकेट खेलता था तो नॉकआउट टूर्नामेंट्स होते तो कभी हार जाते थे तो बुकिंग नहीं थी टिकट्स की। अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आते थे, हैदराबाद से, पटियाला से, बॉम्बे से। उसके बाद प्लेन्स आए, उसके बाद प्लेन्स में ट्रैवल शुरू हुआ। ट्रैवलिंग भी बदल चुकी है वर्ल्ड में, चीज़ें इवॉल्व हो गई बहुत। बहुत बदल चुका है। अब एयरपोर्ट जाओ तो 5 स्टार होटल से भी अच्छा है। राइट। फ्लाइट्स, बिजनेस क्लास ट्रैवल्स, तो समय बदल चुका है और मैं पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा हूँ। नो, जम्मू तवई में अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में बैठ के पटियाला से कलकत्ता आना, 34 घंटे की ट्रैवल, और बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना सोते सोते बहुत फ़र्क है। तो आजकल के क्रिकेटर्स बहुत एडवांटेज में है और मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ गावस्कर, कपिल देव, मोहिंदर, ये सारे लोग जो इस चेंज को लाए हैं हमारे लिए। तो वो चेंज में देखा हूँ। तो इवन यू सर।
आप भी बिल्कुल नहीं, हमारा समय तो बदल चुका था, हमारे समय तो चीज़ें बदल चुकी थी। अब वो चेंज मैं वुमेन्स क्रिकेट में देख रहा हूँ Yes. WPL के साथ। सो ये देखिए एक इनएक्सपीरियंस कुक का हालत, बट नहीं बट सही चल रहा है, हमें खाने यही में अच्छा चाहिए। होगा। नहीं नहीं नहीं, यही चाहिए हमें। मैंने रेसिपी ऐसी चूज की है कि हम एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जलाने का जला काम में जला में। बट नो, आई विल मेक यू, ये रेसिपी बनाने के बाद आप ये रेसिपी आराम से बना पाओगे, दैट आई गारंटी यू, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन सर, और वो कभी लेके गए आपको स्पेशल कुछ खिलाने? मैं सिर्फ उसका ओपनिंग पार्टनर नहीं था, उसकी बदमाशी के पार्टनर, उसके शौक के पार्टनर, सब कुछ पार्टनर था उसका। बदमाशी नहीं कर पाता था क्योंकि सचिन तेंदुलकर जहाँ जाता था कैमरा पीछे पीछे जाता था, कुछ कर नहीं पाता था। और बहुत अच्छे फैमिली से भी आए हैं, उनके उनके पिताजी टीचर थे, तो वैल्यूज़ लाइफ के बहुत अच्छे। उनकी बदमाशी थी खाने का। अच्छा। हम जब नैरोबी गए थे केन्या में, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा बड़ा रेस्टोरेंट है, मुझे नाम याद नहीं, मैं आपको नाम बताता हूँ बहुत जल्दी। तो हम सारे, वहाँ सब मीट्स मिलता है। उनको क्रोकोडाइल मीट खाना था और मुझे पता, उनको पता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने शेफ़ को बोला कि अच्छा से क्रोकोडाइल मीट बनाओ और टेबल में जब देना उसको चिकन बोलना। तो उन्होंने टेबल में डाल दिया, हमने खा लिया, पता भी नहीं चला। हाँ। पता भी नहीं चला। फिर एंड में मुझे पूछता है कि कैसा था, मैंने कहा बहुत अच्छा है यार, चिकन यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। तो फिर बोलता है वो क्रोकोडाइल था। तो आपका रिएक्शन क्या था? कुछ बोला नहीं, अब कुछ बोलेंगे तो टीम से निकाल देंगे, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा वो, आपको कौन निकाल सकता है टीम से? मैंने कहा वो अच्छा है, मैंने कहा खाना अच्छा है, बट वो बहुत अच्छे इंसान। बट ऐसे वाइल प्लेइंग टुगेदर, जैसे जब भी टीम में साथ में खेल रहे होते हैं, तो ऐसे बदमाशी प्रैंक्स भी काफी सारे होते हैं, मैंने सुने भी हैं, आपने भी किए हैं, आप पर भी हुए हैं ऐसे कुछ प्रैंक्स हुए हैं इंदौर में जूनियर क्रिकेट 14 साल के थे दोनों। तो एक संडे था, दोपहर को इतनी वासु परांच भी ट्रेनिंग कराते थे, तो संडे को छुट्टी मिला तो दोपहर को सो रहे थे अपने कमरे में। तो सडनली उठ के देखा कि इतना सही कमरा था जी, ओके। सडनली उठ के देखा कि पूरे कमरे में पानी है, जूता भी फ्लोट हो रहा है। लकीली किड बैग्स ग्राउंड में थे, बैट्स वगैरह नहीं तो वो खराब हो जाते थे। तो मुझे लगा कि बाथरूम के पाइप फट गए होंगे, इसीलिए रूम में पानी। बाथरूम में जाके देखा वो बिल्कुल सूखा है। अच्छा। हाँ, तो दरवाज़ा खोला तो सामने देखा सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बकेट्स लेके खड़े हैं और दरवाजे के नीचे से पानी डाल रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों किया भाई? कहते तुम संडे दोपहर को सो रहे हो। मैंने कहा पूरा वीक इतनी ट्रेनिंग करूँगा तो थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए। और उनको वो पसंद नहीं। 14-15 साल के थे, इतने बड़े बड़े बाल थे, और टैलेंट उस समय ऐसा था कि कोई देख के बोलेगा ये तो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। अच्छा। इतना बड़ा प्लेयर नहीं बनेगा किसी ने नहीं सोचा था, बट सोचा था कि बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। तो बस उसी से शुरुआत। एक साथ जूनियर क्रिकेट खेले, अंडर 15 खेले, 17 खेले, 19 खेले, फिर वो इंडिया के लिए खेला। जब मैं इंडिया के लिए खेला था वो सचिन तेंदुलकर बन चुका था। फिर दोनों एक साथ ओपनिंग की, एक साथ 15 साल दोनों खेले, तो बहुत समय बिताया एक दूसरे के साथ। बट नॉन स्ट्राइकर एंड से उनको खेलते हुए देखने का एक्सपीरियंस कैसा? बहुत What मजा was था, it? बहुत अच्छा। और वो ना, आप वो दूसरे एंड पे खेलते थे तो आपको लगता था यार मेरा गेम को भी आगे ले जाना है, नहीं तो लोग बोलेंगे यार एक बड़ा प्लेयर खेल रहा है और एक ऐसे ही खेल रहा है। तो आपको खुद का गेम इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी था। बट कभी स्ट्राइक नहीं लेते थे, कभी वनडे क्रिकेट में पहला खेला नहीं, क्योंकि आवाज़ इतना होता था हाँ। तो वो खेलते नहीं थे। और उनका दोनों एक्सक्यूज़ था। जब वो अच्छे फॉर्म में थे तब मुझे बोलता था कि देख मैं अच्छा फॉर्म में हूँ, सब अच्छा चल रहा है, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहूँगा। और जो वो खराब फॉर्म में थे तो बोलते देख मेरा खराब फॉर्म इतना खराब है, तू थोड़ा मुझे सपोर्ट कर, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड में खड़ा होता। अच्छा। तो हर समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़े होते थे नए बॉल पे। तो रिश्ता बहुत अच्छा बन चुका था क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था समय के साथ। दोस्तों में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उस समय उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ से, क्योंकि हर समय बाहर, साल में 7-7 8-8 महीना बाहर रहते थे। बट एक बहुत अच्छा इंसान और बड़े प्लेयर से ज़िंदगी गुजरा है। सिर्फ वो नहीं, राहुल द्रविड़, यस। VVS लक्ष्मण, वन ऑफ द All of them. नाइसेस्ट पर्सन्स you'll मीट। द नवाब नजफगढ़, सहवाग जी, वो बहुत बढ़िया इंसान। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह पंजाब से, युवराज सिंह, फ्लैम्बॉयंट युवराज बट फैंटास्टिक एट हार्ट। और बजी और युवराज के साथ भी कुछ प्रैंक हुआ है, वो आई हैव हर्ड देम सेइंग हाँ, उन्होंने आप पे प्रैंक किए हुए हैं। मेरे रन नहीं बन रहे थे पाकिस्तान के सामने, तो ऐसे ही मेरा मूड बहुत ख़राब था, तो आई गॉट बूड इन बैंगलोर क्योंकि 2 पारियों में रन नहीं बने। कप्तान था तब। पेपर में मैं पेपर नहीं पढ़ता था क्योंकि क्रिटिसिज्म होती थी रन नहीं बन रहे। तो अगला दिन मुझे बोलता है कि आपने हमारे बारे में पेपर में कुछ गलत बोल दिया। तो मेरा मूड ठीक नहीं था, रन नहीं बन रहे। मैंने कहा मैंने क्या बोला भाई? और मैच हम हार गए थे एक्चुअली पाकिस्तान के सामने। तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और उनको पता है कि मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे बोला है कि टीम ने मुझे सपोर्ट नहीं किया इसीलिए हम जीते नहीं। मैंने कहा
अगर मैं ये बोला है तो मैं अभी रिजाइन कर जाऊंगा। मैं ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ। मैं तुम्हारा कैप्टन रहा हूँ 5 साल। मैं अभी ये क्यों बोलूँ? तो मुझे पता नहीं था कि वो 1 अप्रैल था। वो अप्रैल देख, फूल्स कर हाँ रहे थे। हाँ। तो वो अप्रैल फूल कर रहे थे, और अप्रैल फूल से ज़्यादा वो मेरा मूड हल्का कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि यार रन नहीं बन रहे तो दिमाग इसका खराब ही है। तो इतनी क्लोज रिलेशनशिप थी इन सबके साथ। फिर एक चीज़ आपने जो बोली, इट्स अ थिंग टू लर्न, सीखने वाली चीज़ है कि आपने जैसे बोला कि व्हेन यू यूज्ड टू वॉच सचिन सर प्ले ऑन द अदर एंड, और वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती थी कि आई हैव टू अप माई गेम। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जब साथ में काम कर रहे हो तो एक कंपटीशन हो जाता है, बट अगर वही कंपटीशन को अगर इंस्पिरेशन जैसे लेके एट वॉट एवर स्टेज यू आर एट इन लाइफ, वो लेके अगर सीख के अगर उस पर काम किया जाए, सो इट इज़ so much positive to see in the world out there. एब्सोल्युटली, कंपटीशन शुड बी हेल्दी। और हम तो एक टीम के लिए खेलते थे। हमको टीम को जिताना है, भारत को Very जिताना important. है। और मैं कैप्टन था उस समय, तो वो इनसिक्योरिटी तो था नहीं। Absolutely. पता था कि यार इस टीम को अगर आगे बढ़ना है तो एक प्लेयर नहीं जिता सकता, सबको जिताने पड़ेंगे। और वो कल्चर आना बहुत ज़रूरी था स्क्वाड में, कि कोई ना कोई जिताएगा। और प्लेयर चुनते थे भी वैसा। सहवाग जिस दिन खेला जिता है। युवराज सिंह देखो कितने मैचेस जिताए। बट आपने उनके पोजीशंस चेंज करके भी जो डिसीजंस थे वो विच वी ऑल हैव रेड अबाउट, जो आगे जाके लाइक फॉर सहवाग ओपनर बना, उनको बनाने में आपका ही हाथ था। और ऐसे भी टाइम था जब भी आपने अपनी पोजीशन छोड़ के किसी को अपनी पोजीशन दी आगे। क्योंकि टीम सबसे इम्पोर्टेंट है, जीतना बहुत ज़रूरी है। किसने 100 बनाया, किसने 50 बनाया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि एंड में 5 दिन में 50 ओवर के बाद टीम जीते। हमारे समय T20 था नहीं, T20 तो बाद में आया, तो एंड में जीते। बट वो T20 का स्विच भी जो था वो आप ही के साथ, लाइक दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। That time only 2008 we were towards the end या of our careers. I was about 35 then. तब T20 आया, IPL आया। अब देखो IPL ने क्रिकेट ही बदल दी। क्या लगता है 2025 में कौन सी आईपीएल टीम है सबसे ज्यादा? ये बोलना मुश्किल है कौन जीतेगा, क्योंकि T20 में कोई भी जीत सकता है। लेकिन अच्छे टीम्स है, सनराइजर्स, दिल्ली कैपिटल्स। अब MS धोनी को कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते, जितना भी उम्र हो जाए। यस। चेन्नई सुपर किंग्स, बॉम्बे अच्छी टीम है। गुजरात हमेशा सरप्राइज करते हैं। पहला 2 साल कमज़ोर टीम लेके उन्होंने जीते एक साथ। तो मेरे शुभमन हिसाब गिल भी अभी काफी कप्तान है। फॉर्म है। कप्तान है, पर हार्दिक पांड्या उनके लिए बहुत फर्क करता था, वो है नहीं। तो मुझे ये 4 टीम बहुत बहुत स्ट्रांग लग रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद, KKR थोड़ा सा कमजोर है लास्ट ईयर से, क्योंकि फिल सॉल्ट और श्रेयस अय्यर नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है। यस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी उनकी टीम के है नहीं। और ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो लुकआउट पे आपको लगता है ये साल, लाइक देयर वुड बी मे बहुत ब्रेक सब थ्रूज और बहुत सारे। बहुत सारे? यशस्वी जायसवाल राजस्थान, रियान पराग राजस्थान, संजू सैमसन राजस्थान, मुंबई लेफ्ट हैंडर तिलक वर्मा यस। मुंबई, बुमराह बुमराह तो फॉरएवर, फॉरएवर। जेक फ्रेजर मगर्क दिल्ली, दिल्ली, या एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम। KL Rahul Delhi. He was there with us last year. He was superb last year. KL Rahul Delhi, Christian Stubbs Delhi. फैफ भी आई थिंक नाउ इज विद दिल्ली। His path is on his. Yeah. So थोड़ा check. Everybody was thinking that he is not going to play this year, but then Yeah. Yeah. KL Rahul Delhi. yeah, Akshar he's doing Patel, so well captain. right now. Everybody calls him, like हम लोग तो बापू ही बोलते हैं। बापू। ऑलमोस्ट हो गया एक्चुअली, बस इसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था, छोड़ दो अपने आप जलते रहेगा वो। इट इज सो इजी, मतलब वी कैन जस्ट लीव इट ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से अगर एक परफेक्ट बंगाली मील हो, द बेस्ट बंगाली मील एवर, अगर एक टेबल पे स्प्रेड हो, तो वो टेबल पे क्या क्या होगा आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट है? पुलाव राइस, मटन, दाल, पोस्तो, फिश फ्राई, हिलसा, and the sweets would be mishti doi. Wow. Mishti doi, rasgulla, and the varieties of rasgulla. One is the white one, one Yes. is the Nolin good one. Unbelievable. Nolan Good is an amazing ingredient. Yeah. Kamala Bhog, orange color rasgulla. So sweets are unbelievable. Bengali sweets are next level. मटन कौन सा होगा? कौशा मांगशो Kosha mangsho with luchi. विद लूची विद पूरी। वो दुर्गा पूजा में खाते हैं kosha mangsho with हाँ, luchi. पूजों के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में कितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, दे ऑल्सो टर्न इनटू फूड फेस्टिवल्स। और एक इससे मेरे को एक चीज़, मैंने आपकी बुक पढ़ी है, दादा ने एक सिख का, एक सरदार जी का गेटअप किया था जस्ट टू एंजॉय द इमर्शन। और थोड़ा कंपटीशन भी था बेटी के साथ। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं सरदार बन जाऊंगा तो लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। हाँ,
और उन्होंने बोला था कि उन्होंने नहीं कहा कि पहचान नहीं जाएंगे। फिर भी पहचान लेंगे हाउ आप। डिड इट गो आउट? तो पता नहीं आपने वो फोटो कभी देखा है कि मैंने देखा है, उसमें है बुक में। हाँ, तो फोटो में तो मैं बन गया था सिख हाँ। और चले गए माँ दुर्गा इमर्शन। माँ दुर्गा इमर्शन इज फैसिनेटिंग इन बंगाल। Those 7 days of Durga Puja is the best time in the world. Everything is shut, holiday, it's only Ma Durga and festival. Yeah. तो इतना खुशी, इतना फेस्टिविटीज मैं देखा नहीं। और जब माँ दुर्गा जाते हैं ना तो घर में लोग रोते हैं कि माँ दुर्गा चला गया Yeah. और जिंदगी फिर पुरानी जिंदगी हो जाएगी। इतनी खुशियाँ देती है लोगों को। तो दुर्गा पूजा के समय कुछ भी खाना, कि घर में कोई खाते नहीं, क्योंकि घर में कोई रहता ही नहीं है, सब बाहर है, मंडप में है, माँ दुर्गा के पास है, फैमिलीज के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। तो एक अलग माहौल है कलकत्ता। ये आपको फिर किसी ने पहचाना कि नहीं पहचाना? लेकिन पहचाना अच्छा, ऑफ कोर्स। पहचान। जैसे मैं घुसा गाड़ी में तो पहले पुलिस वाला ही पहचान लिया, जो वहाँ पे बहुत पुलिस होते थे। हाँ। कहता है आप जितने भी कर लो लोग पहचान हम जाएंगे। तो पहचान ही जाएंगे आपको। ठीक है, आपका गाड़ी एकदम सामने तक जाएगा। तो सामने तक गया तो उतर के खड़े। इनिशियली लोग पहचाने नहीं किसी ने, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं expect किया। किया। मेरी बीवी के पास एक अजीब एबिलिटी है, अगर दूसरे को कुछ चीज बोलना है हाँ। तो उनको जाके बोलना किसी को बताना मत। अच्छा। तो वो इमीडिएटली बता देंगे। हाँ। मैंने साना को बोला देख मैं तो चला तो गया हूँ, वहाँ पे कुछ बोलना मत। तो वो तो बेटी तो ठीक है बिल्कुल खड़ी है। तो मेरी वाइफ आके मुझे कहती है ये तुमको ना बहुत अच्छा लग रहा है। अब पीछे वाले ने पकड़ लिया कि दीदी दादा को आप ऐसे कर रहे हैं। तो मेरी बेटी हंसने लगी। तो उसी दिन से अगर किसी को कुछ बताना है हाँ, तो मेरी वाइफ को जाके बोलना सुनो ये हुआ है, बट किसी को बोलना मत। बोलना मत। 15 मिनट में सब जान जाएगी। ये हो गया। मतलब हो तो पहले ही जाता, हम लोग ने बात करना था तो स्लो किया है थोड़ा। अदरवाइज इट जस्ट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स फॉर दिस टू बॉयल, और ये 5 मिनट में हो जाता है। ये से स्किन पूरी ब्लैक हो जानी चाहिए, इट कम्स ऑफ, बट दिस गिव्स इट अ वेरी स्मोकी फ्लेवर, एक अच्छा तंदूर फ्लेवर flavor। हाँ आ जाता है। और जब इसको ब्लेंड करेंगे तो वो फ्लेवर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इसको भी बंद कर देते हैं। वी गोइंग टू लेट इट जस्ट Cool down। अ लिटिल बिट एंड देन वी विल ग्राइंड इट। गुड। तो दादा सारी चीज़ें हमने ठंडी कर ली हैं, पुट इट इन अ मिक्सर ग्राइंडिंग जार और सबको भी ब्लेंड कर देना है साथ में। डन। खाली ब्लेंड करने से पहले जो बेल पेपर और टमेटोज हैं उसकी जो ब्लैक स्किन है वो निकाल देनी। यू कैन ऑल्सो वॉश इट अंडर द टैप, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा बिटर फ्लेवर आ जाएगा। आर ग्रेवी इज़ रेडी, वी विल जस्ट कुक इट नाउ। ये गैस शुरू कर देते हैं, ऑयल ऐड कर देते हैं, सम जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये पेरी पेरी पाउडर है, सो मिक्स ऑफ स्पाइसेस, ऐड सम चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो, और बस इसको थोड़ा सा सौते करना है। दिस ग्रेवी गोज इनसाइड, गिव इट अ स्टर, और इसको अभी ढक देते हैं सो दैट हम दोनों के कपड़े ख़राब नहीं हों, बिकॉज दिस गोइंग टू स्टार्ट एंड स्प्लटर। वी विल कुक दिस अबाउट 5 to 6 मिनट्स। और मैं बात कर रहा था 90s के बारे में, जैसे हम लोग जो 90s वाले किड्स हैं, हम लोग अभी स्कूल में थे जब 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था। एट दैट टाइम आई डोंट नो इफ़ ये बात आप तक पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, तभी सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन फाइनल्स के बाद एक रूमर फैल गया था अमंगस्ट ऑल द किड्स, और ये मुझे ऐसे लगता था कि खाली हमारी लोकेलिटी में। पर उसके बाद मैंने पुणे से मेरी टीम वाले हैं, मैं जितने भी गुजरात से लोग को मिलता हूँ, मैंने सबसे पूछा हुआ है और कंफर्म किया हुआ है कि ये रूमर सब जगह फैला था। फाइनल के बाद एक दिन बाद सबको बताया गया था कि फाइनल फिर से होने वाला है, और उसका रीज़न ये है कि रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग था। दिस वॉज अ वेरी वाइड स्प्रेड रूमर एट दैट टाइम, और तभी सोशल मीडिया भी नहीं था, तो हम सब वंडर करते हैं कि कैसे रूमर फैल गया था। कि रूमर आप तक पहुंचा था क्या? हम हाँ, तब पहुंचा था। सोचता हूँ कि ये पूछना है। हाँ पहुंचा था, बट तब तक हम कलकत्ता आ चुके थे। किड बैग अनपैक करके अपने बिस्तर पे सो रहे थे। तो मुझे ये नहीं लगा था कि यहाँ से उठा के फिर जोहान्सबर्ग पहुंचा देंगे फाइनल खेलने में। हम तो आज दिन तक रुके हुए हैं कि वो रीमैच हो। बट वी डिड रियली वेल इन दैट इन 2003, और सिर्फ फाइन इट वाज समथिंग व्हिच वी कैन से जो अभी 2023 में जैसे हुआ कि ओनली इन द फाइनल्स वी एंटर्ड द फाइनल्स एंड वी लॉस्ट द सीरीज, इट वाज बिल्कुल। समथिंग सिमिलर। बिल्कुल एब्सोल्युटली समथिंग एब्सोल्युटली सिमिलर। एंड इंडिया बट एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा खेले उस वर्ल्ड कप। पूरा 5-6 साल बहुत अच्छा खेले। उस समय T20 क्रिकेट था नहीं। हम 2002 चैंपियंस ट्रॉफी जॉइंट विनर्स रहे श्रीलंका के साथ। 2001 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेले नायरोबी में। तो तीनों वर्ल्ड कप लगातार फाइनल पहुंचे। पाकिस्तान गए, उसके बाद पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान में टेस्ट वनडे दोनों, उस समय टेस्ट का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। जी। फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड को हराए टेस्ट में। 25 साल बाद पहली बार इंग्लैंड को हराया इंग्लैंड में। तो एक बहुत अच्छा समय था। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में हराए,
और वो कोलकाता में। कोलकाता में सीरीज हराए, 2-1 सीरीज जीते और ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को, कभी हुआ नहीं। तो उसी हिसाब से स्टीव वॉ था ऑस्ट्रेलिया का, बहुत बड़ा प्लेयर था, Yeah. बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा प्लेयर था। तो उनके साथ लड़ाई होती थी ग्राउंड में, कम कंपटीशन होता था, बट हेल्दी कंपटीशन होता था कि जीते, क्योंकि उस ऑस्ट्रेलियन टीम को हराएंगे तो अपना लेवल ऊपर जाएगा, अपना टीम का स्टैंडर्ड भी ऊपर जाएगा कॉन्फिडेंस से, और वो बहुत ज़रूरी है। आपको जाना जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड यू आर रियली गुड एट द ऑफ साइड, लेकिन मैंने ऐसे पढ़ा, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, कि इनिशियली आप शायद आप वैसे राइट हैंड से खेलते थे एंड मैं पूरा राइट हैंडर हूँ, सिर्फ बैटिंग लेफ्ट हैंड पे करते हैं। मैं खाता भी हूँ, आपके साथ हाँ। अभी खाना खाया, आपने देखा, मैंने राइट हैंड से खाया। मैं बॉलिंग करता था राइट हैंड पे, फेंकता हूँ राइट हैंड पे, लिखता हूँ राइट हैंड पे। तो फिर बैट्समैन कैसे लेफ्ट हैंड हो गए? एक्चुअली फैमिली में सारे लेफ्ट हैंडेड है, तो Okay. ब्रदर है, कज़न ब्रदर्स है, सारे लेफ्ट हैंडेड है, और ग्लव्स लेफ्ट हैंडेड का मिलता था, अच्छा, ग्लव्स, पैड्स, थाई पैड, तो वो उठा के खेलते थे उनसे, तो उसी खेलते खेलते लेफ्ट हैंडर बन तो गए। किट क्योंकि अवेलेबल लेफ्टी का किट था, लेफ्टी का किट था, तो ग्लव्स, पैड्स, थाई पैड सब लेफ्टी का था, तो इसीलिए लेफ्ट हैंडर बन गए। बट बेसिकली राइट हैंडर, और घर में सारे राइट हैंडर्स हैं जो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। अच्छा, इट्स वेरी अनयूजुअल ऐसे। it is. सचिन लेफ्ट हैंडर, वो बैट्स राइट हैंडेड, हाँ, वो लिखते हैं लेफ्ट हैंड पे, खाते हैं लेफ्ट हैंड पे, बट बैटिंग Batting करते हैं right राइट हैंड पे। वेरी अनयूजुअल। यस, वेरी अनयूजुअल। विल जस्ट चेक दिस, इट्स कुकिंग वेल, ब्यूटीफुल कलर्स। दादा एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि 5 ऐसी क्वालिटीज़ हों जो एक अच्छे लीडर बनने में किसी को हेल्प करेगी, तो वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि यू हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कैप्टन्स, एंड यू आल्सो वेंट ऑन टू लीड द BCCI लेटर ऑन। Courage is number one, most important. Courage, decision making is very important. Character is very important. Man management is very important. Taking people together, सबको लेके काम करना is very important. And I think most important thing is trust. The people who you work with should trust you कि ये सही करेगा. Honesty and trust is very important. And I think these 5 characteristics, ये 5 characters बहुत होना ज़रूरी है लीडर में. Oh, absolutely. The color is beautiful. So what I'm going to do is मैं इसमें जो सोया हमने किया था इसको डायरेक्टली डाल रहा हूँ, मैं सौते नहीं कर रहा हूँ। तो सोया बड़ी हमारी चली गई है ग्रेवी के अंदर, और साथ में वेजीज हैं, बेल पेपर्स हैं, और साथ में प्याज है, एंड साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट ऑब्वियसली, और थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ मैं पाम शुगर, a little bit of it to balance the flavors. I'm just going to give it a stir. Looks amazing. Yes, looks terrific. And this is soya in peri peri sauce. Yes, सोया बड़ी इन पेरी पेरी सॉस, और ये एक रेसिपी बनी है जो यूजुअली हम करीज बनाते हैं या खाली पुलाव बनाते हैं। ये एक हटके रेसिपी है जिसमें हम पेरी पेरी सॉस में कर रहे हैं। और वैसे ही सोया बड़ी को आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से पका सकते हो। इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ में बन सकती है, लेबनीज़ में बना सकते हो, मैक्सिकन में बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो। कंट्रोवर्शियल है स्लाइटली बिरयानी बट स्टिल कैन बी कुक्ड रियली वेल Controversial and tasty. एंड टेस्टी, वेरी टेस्टी। कोई अच्छी चीज़ कंट्रोवर्शियल ही होता है। और आपको न्यूट्रिशन भी देती है, सो यू गेट योर प्रोटीन आउट ऑफ इट, बिल्कुल। यू गेट योर न्यूट्रिशन आउट ऑफ इट, सो इट्स वेरी नाइस। तो ये अभी बस थोड़ा इसमें से इसको इसके अंदर ये कुक होगा, और जो फ्लेवर्स है वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा जो हमने स्क्वीज़ किया था इसको। नाउ इट विल जस्ट सोक इन ऑल द पेरी पेरी फ्लेवर्स, और जिसकी वजह से फॉर्चून सोया बड़ी जो है एब्सोल्युटली सोक्स इन ऑल द फ्लेवर्स, द मसालाज रियली वेल, और जब भी खाओगे तो एकदम जूसी लगेगा, अंदर से वो मसाले का फ्लेवर आएगा, फीका नहीं लगेगा, एंड द टेक्सचर्स वुड बी अमेजिंग। इसको बस ढक देते हैं और स्लो पे इधर रखते हैं, और बाजू में खाली एक सौते करना है राइस जो इसके साथ सर्व होगा, विच इज़ अ लेमन कोरिएंडर राइस। यहीं पर रहने देते हैं इसको, इधर ही हंसते खेलते बन जाएगा। दादा पैन गरम हो गया, बस थोड़ा सा ऑयल अगेन ओवर हियर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, द अनियन गोज इनसाइड, द कोरिएंडर आल्सो गोज टुगेदर, then we'll do the rice, the pinch of salt and lots of lemon juice. अरे वाह, Yeah, this is done. So simple. This is done. We're going to plate it. But before that, just one last question I want to ask. एक इंडियन बच्चा है 10 साल का, जिसे गांगुली या सचिन तेंदुलकर या धोनी या स्मृति या जेमिमा जैसे बनना है, और कई बच्चे जो ऐसे होते हैं जो गली क्रिकेट खेलते हैं या सोसाइटी में खेलते हैं, वो सोचते हैं कि हमको भी क्रिकेटर बनना है, बट व्हेन दे एक्चुअली गो एंड डू देयर कोचिंग, तब पता चलता है कि ये पूरा ही अलग है कुछ। देयर इज फिटनेस, देयर इज अ लॉट मोर। तो एक बच्चा कैसे शुरू करे, बिकॉज फॉर अ स्पोर्ट्समैन इट्स वेरी नेसेसरी टू स्टार्ट अ लिटिल अर्लियर। देखिए, अगर आपको खेलना है और आप चाहते हो खेले, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी।
लाइफ में कुछ चीज़ का गारंटी नहीं है। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, जब पॉलिटिक्स शुरू की, उनको थोड़ी पता था कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यस मैंने जब पहला क्रिकेट बैट उठाया 12 साल की उम्र में, मुझे पता ही नहीं था क्या करना। कोई भी यंग खिलाड़ी अगर गेम शुरू करे तो वो सोचता नहीं है कि देश के लिए खेलूंगा, वो खेलते हैं क्योंकि उनको खेलने में अच्छा लगता है। तो पहले एंजॉय करें और उसी दिन अच्छा परफॉर्म करें, उसी मैच में अच्छा परफॉर्म करें, जिससे कि आपको अगला मैच पे मौका मिले। ज़्यादा आगे ना सोचें। हम एक गलती करते हैं कि हम बहुत दूर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जिससे कि प्रेजेंट हम भूल जाते हैं। तो गेम में प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है और जो दिल चाहे वो करे, कि लाइफ में कुछ चीज़ का गारंटी नहीं है। एंजॉय करना है, शुरू करना है पहले, तो सबसे बड़ी शुरू बात करना है है टू स्टार्ट, शुरू करना है, एंजॉय करना है और और रोज कुछ ना पेशेंस कुछ रखना सीखना है, है। और पेशेंस पेशेंस रखना है। एक दिन में कोई बड़ा नहीं बनता। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज की एंड दैट्स अ ग्रेट लर्निंग। एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बचपन से, वो पूरी करने वाला हूँ। आपसे बैग साइन करवाना है। थैंक यू। इफ यू मे यस प्लीज। कोर्स। थैंक यू सो मच दादा, दैट मीन्स अ लॉट। और इसी के साथ में आई एम गोइंग टू गिव, हमारा जो एक कोई लकी व्यूअर होगा, मैं उनको चांस देने वाला हूँ कि वो आपका एक साइन बैट मैं उनको भेजूँ। सो दिस इज़ फॉर अ YFL व्यूअर। ये और एक बैट है जो आप बस साइन कर दीजिए। और ये आपको कैसे मिलेगा ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ, बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर YFL व्यूअर। थैंक यू सो मच, दिस इज Thank सो you. ब्यूटीफुल। थैंक यू। सर दादा, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हमने। हमारा सोया बड़ी इन पेरी पेरी सॉस रेडी है, लेमन कोरिएंडर राइस रेडी है, एंड वी आर गोइंग टू प्लेट इट इन 3 वेज। पहला है, वी आर गोइंग टू सर्व द राइस एंड द पेरी पेरी सोया चंक्स एज अ बोल। वी विल टेक सम राइस, जो लेमन कोरिएंडर राइस है वो इसके अंदर जाएगा। ओके। हाँ, आई विल पुश इट टूवर्ड्स द, इसको एक साइड पे थोड़ा सा पुश कर देंगे, या एंड नाउ विल टेक द सोया, और सोया को हम दूसरे साइड पे ऐसे प्लेट करेंगे। सो देयर इज लाइक दिस गुड सर्विंग ऑफ सोया, मतलब अच्छी क्वांटिटी में सोया चंक्स करेक्ट। हम ले रहे हैं, अच्छा हमको प्रोटीन मिले। प्रोटीन मिले। यहाँ पर गार्निश के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर ऑन द पेरी पेरी सोया। दिस इज द Okay. फर्स्ट प्लेटिंग विच इज रेडी। दिस इज द सोया। Oh, ये भी टेस्ट smell- करेंगे, we'll smells taste good. it. Yes, this is the खाना first। टेस्ट से पहले स्मेल होता है। हाँ हाँ, ये हमारे पास 2 प्लेटर्स हैं और इसमें हम रखेंगे ज्वार का टाकोस बनाया है, ज्वार की भाकरी है, उसको एज अ टाको बनाने वाले। सोया लेंगे एंड वील प्लेट द सोया, ऐसा बीच में रख देंगे इसको, परफेक्ट। तो मैंगो का सालसा बनाया है, ये ऐसे बीच में डालेंगे। तो मैक्सिकन विथ यस, विद पेरी सोया। पेरी सोया। सोया। एंड देन ये सावर क्रीम है, ये ऐसे थोड़ा सा बस कलर कट करने के लिए, वील जस्ट एड इट इन द मिडल। और ये धनिए से इसको गार्निश कर देना है बस ऊपर। आखिरी प्लेटिंग जो है हमारी टॉर्टिया है, इसमें हम डालेंगे पहले बेस में थोड़ा सा राइस। ये बना रहे हैं हम लोग बुरीटो, बुरीटो। सोया बड़ी पेरी पेरी सॉस। अब इसमें डालेंगे लेटस, बीन्स ऐड करेंगे, रेड किडनी बीन्स, ब्लैक किडनी बीन्स, सालसा भी डाल देते थोड़ा सा इसके अंदर। एंड नाउ यू गोइंग टू रैप इट। रैप करना बहुत इंटरेस्टिंग है इसको, आई एम गोइंग टू टीच दैट टू यू। इसको ऐसे इधर से उठाना है, ये वाले दोनों साइड्स को ऐसे प्रेस करना है। हाँ, फिर इधर से विद योर थम्स, यस परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ऐसे करके यू जस्ट ग्रैब दिस लाइक दिस, ये कवर करके यू जस्ट ग्रैब इट, पुल इट विद योर हैंड। यू आर डूइंग इट परफेक्टली सर। और बस रोल कर देना है, हो गया। हो गया भाई। अपलॉज एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू। One go, mate. That was very नाइस। so 3 platings we have done. The tacos made by Saurav Ganguly himself, दादा ने बनाए, और ये राइस है और ये बुरीटो है, और सच्ची सच्ची बताना कैसे बने, हम दोनों ने बनाए हैं। Cheers. Superb. Superb. It is actually very tasty. वो जो टेक्सचर की हम बात कर रहे थे फॉर्चून सोया बड़ी की, सॉफ्ट सक्यूलेंट जूसी, अंदर तक मसाला एकदम पहुंच गया है। And trust me, Yeah. not because you see this picture me doing this, it's actually I like soya. Trust me, it's an honest confession. It is not just on a fortune packet, but from inside, I like soya. जब भी सोया बड़ी यूज़ की है, फॉर्चून सोया बड़ी के साथ ही खाना बनाता हूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज़, और मेरे ख्याल से ये वीडियो भी और स्पेशल हो गया है बिकॉज 25 साल हो गए फॉर्चून एज अ ब्रांड को, और
वो 25 साल के साथ बहुत ज़्यादा अश्योरिटी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आ जाता है विद ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और टेस्ट। और टेस्ट। और स्पेशली जो घर के खाने को इम्पोर्टेंस फॉर्च्यून ने दिया है कि घर का खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और घर का खाना आप ऐसे एकदम टेस्टी बना सकते हो, हटके बना सकते हो, एंड विद फॉर्च्यून सोया बड़ी न्यूट्रिशन भी आ जाता है। एब्सोल्युटली, बहुत स्वाद है खाने में। थैंक यू सो मच। हम दोनों साथ में बनाए हैं। मैं 26 को बेटी के पास जा रहा हूँ ओके, यू कुक दिस फॉर 5 दिन के लिए छुट्टी बनाने, तो साथ में एक लेके जाऊंगा। डन। और मेरे को जरूर बताना कैसे बना वहाँ। बिल्कुल, प्लीज शेयर जैसा आपने दिया, गर्म पानी में डालना है, हाँ, थोड़े 5 मिनट रखना है, फिर ठंडे पानी में डालना है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। यस, फिर इसको आपका जो पेरी पेरी सॉस है, उसमें उसके साथ थोड़ा सा बेल पेपर्स और टमाटोज, उसमें थोड़ा ग्राइंड करके पेरी पेरी सॉस में डाल के फिर खा ले। ब्यूटीफुल रिकैप भी मिल गया रेसिपी का एकदम परफेक्टली। एंड ये रेसिपी बनने वाली है और आप भी सब बनाना इस रेसिपी को। फॉर्च्यून सोया बड़ी के साथ इतनी सारी चीज़ें बन सकती हैं, तो आपको कमेंट्स में नीचे लिखना है कि आप फॉर्च्यून सोया बड़ी के साथ क्या हटके रेसिपीज़ बना सकते हो। एकदम हटके रेसिपीज़ लिखो, जो भी रेसिपीज़ मुझे अच्छी लगेंगी, एक लकी व्यूअर को जो आपने बैट साइन किया है वो मिलने वाला है। सो ऑल दादा फैंस, जी जान लगा दो, नीचे कमेंट सेक्शन भर दो, और ये भी बताओ कि आपको दादा को पहली बार कुक करते हुए देखकर कैसे लगा। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव एंजॉयड वाचिंग अस, लिसनिंग टू अस, और बहुत सीखा हमने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. ऑनरिंग मी Lovely. एंड माय किचन। इट वाज सच अ प्लेजर सर। Thank you. Thank you. It's lovely, and I must tell you the taste is outstanding. थैंक यू सो मच दादा। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. Lovely. Pleasure. डन।